Good morning, students. In the previous video, we have started a new chapter, A Strange Wrestling Match, Chapter 10 from your book, A Pact with the Sun. We have covered the first part in the video. What we have studied in the first part, we studied that there was a person whose name was Vijay Singh, and he was a very famous wrestler. He was very strong, very powerful, that nobody can even beat him. But one thing was his shortcoming, that he was very fond of boosting, and sometimes his this habit used to bring him in a very awkward situation. Once he took himself upon to fight with the ghost in the haunted desert. Then he went to after bidding farewell to his villagers, he went to the haunted desert. When he was going there, there was an old woman who gave him a small packet containing an egg and a lump of salt. And he went to the haunted desert, taking all these things and saying goodbye to his villagers. When the moment he met the ghost, Vijay Singh met the ghost claimed that he was his friend Natwar. But somewhere Vijay Singh know that it is just a ghost. He is not his friend. So he started doing insult of the ghost that he is not very strong. He is just a very powerless ghost. He don't even know anything. He can't even read the mind of other people. Vijay Singh started insulting ghost, and then the ghost challenged him that I am strong as compared to you also. Okay, this is what we have studied in the first part. Now we are going to start with the second part. Let's begin with these three summarization point. First is Vijay Singh demonstrated his strength by crushing what the ghost thought was a piece of rock. Now Vijay Singh started demonstrating his strength. He started showing his strength by crushing the stone, just like that ghost thought that is a piece of rock, and Vijay Singh is crushing the stone just like, and he's showing his strength, full strength. Second point is the ghost avoided a wrestling bout with Vijay Singh but decided to conquer him through cheating. The ghost at the second point was like that the ghost was he was very clever, and he thought that I will not do any wrestling or any wrestling match with him. What I can do is I can win him by doing cheating. Okay, conquer means winning. So he's thought that I will win by doing cheating. Third point is he invited Vijay Singh to be his guest for the night. Then the ghost invite Vijay Singh that don't go home in the mid of the night. Just come to my home and you can live there. Tomorrow morning you can leave to your village. So he invited Vijay Singh to his house. Let's start the chapter. Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered it to the ghost, and squeeze it hard. It is filled with fluid. See if I'm wrong. अब विजय सिंह ने क्या किया, विजय सिंह ने क्या करा, एक रॉक उठाया, ठीक है, पीस ऑफ रॉक उठाया, सैंड से उन्होंने रॉक लिया। रॉक लेने के बाद उन्होंने क्या करा, उसे घोस्ट को दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको बहुत ही हार्ड तरीके से, एकदम ताकत से आप इसको स्क्वीज़ करना, ठीक है, दबाने की कोशिश करना। इसमें क्या है, इसमें फ्लूइड भरा है। फ्लूइड क्या होता है, किसी भी तरीके का लिक्विड जो होता है, ठीक है, वो भरा हुआ है। देखो अगर मैं गलत हूँ तो। While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. अब क्या होता है, जब घोष जो था उसने क्या करा, उस रॉक को बड़ी ताकत के साथ स्क्वीज करने लगे। ठीक है, पहले उन्होंने एक हाथ से किया, फिर उसने क्या किया, दोनों हाथों से किया। तो मीनवाइल जो विजय सिंह थे उन्होंने क्या करा, स्टिल्थली मतलब चालाकी से, ठीक है, एकदम चालाकी से अपने पॉकेट से क्या करा, एग निकाला। विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed in between both hands and squeezed. अब विजय सिंह ने क्या करा कि उसने घोस्ट को देखा, घोस्ट से तो हो नहीं रहा, तो उसने क्या करा, घोस्ट से स्टोन छीना फटाफट और अपने हाथों के बीच में रखा और उसके बाद उसको स्क्वीज किया। At once the yellow yolk oozed from around his fingers and the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने क्या करा कि स्टोन जो था अपने हाथों के बीच में रख के उन्होंने उसको दबाया। ठीक है, उनके हाथ में क्या था, एग भी था। तो जब उन्होंने क्या करा, एग भी दबाया और स्टोन भी दबा दिया, ऐसे ही दिखा रहे थे। तो क्या हो रहा था, जब वो एग उनके हाथ से दबा तो उसमें से जो येलो यॉक यानी कि जो येलो पार्ट होता है एग का, वो उनके हाथों उनकी उंगलियों के बीच से निकलने लगा। और वो जो एग शेल यानी कि एग का जो आउटर कवर होता है, वो वाइट वाइट कलर का पार्ट जो होता है, वो जब उन्होंने स्क्वीज़ किया तो बिल्कुल ऐसा क्रैकलिंग साउंड आ रहा था, ऐसा साउंड आ रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर जो है उसको क्रश कर रहा है, उसको तोड़ रहे हैं।
The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. अब क्या हुआ, जो घोस्ट था वो इतना ज़्यादा एस्टोनिश्ड का मतलब होता है इतना ज़्यादा सरप्राइज था विजय सिंह का पावर देख के, कि क्या हुआ कि उसने ये भी नहीं नोटिस किया कि विजय सिंह ने क्या करा, वो नीचे झुके हैं, उन्होंने अपने हाथ को सैंड से साफ किया है, ठीक है। जितने भी एग के जो छोटे मोटे चीज़ें, जो भी क्रश्ड पार्टिकल जो था एग का, वो सारा नीचे गिरा हुआ था, उन्होंने क्या करा, उसको सैंड के अंदर ही छुपा दिया। तो वो जो बोला ना टेल शेल, यानी कि उनकी जो स्टोरी थी ना, जो कि भाई इसके अंदर से फ्लूइड निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है, तो वो जो स्टोरी थी उन्होंने उसको छुपाने के लिए क्या करा, फटाफट नीचे से झुक के विजय सिंह उन्होंने क्या करा, उसको कवर कर दिया, ठीक है, सैंड से, और बिल्कुल पता ही नहीं चला, और घोस्ट ने बिल्कुल नोटिस भी नहीं किया कि विजय सिंह ने ये सारी चीज़ें भी की उनके सामने। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गिव इट टू द घोस्ट। अब क्या हुआ, विजय सिंह ने दोबारा से एक और रॉक जो था वो उठाया, एक पत्थर उठाया, और उन्होंने ले जाके दोबारा से घोस्ट को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट। बिना कुछ बोले जो घोस्ट था उन्होंने क्या करा, वो जो रॉक था यानी कि वो जो स्टोन था उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। उन्होंने उसको पकड़ा, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। उन्होंने क्या करा, उसको फील किया, उसको देखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। अब विजय सिंह ने क्या करा, दोबारा से अपनी पॉकेट में हाथ डाला, और वो क्या निकालना चाहते थे, वो जो सॉल्ट जो था वो ओल्ड विमेन ने उनको दिया था, वो सॉल्ट वो अपने पॉकेट से निकालने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट। अब घोस्ट ने बोला कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है, एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी। वो कह रहे कि और बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। अब विजय सिंह ने दोबारा से थोड़ी इंसल्टिंग वे में बोल दिया, घोस्ट को इंसल्ट करते हुए, कि मैंने तो आज तक कभी किसी घोस्ट के बारे में सुना ही नहीं कि वो रात को देख ही नहीं सकता। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट। अब उन्होंने बोला कि वो जो स्टोन आपके हाथ में है ना, उसमें क्या है, उसमें सॉल्ट है, ठीक है, उसमें नमक है। क्रम्बल इट एंड सी। उसको क्रम्बल करो, आपको दिख जाएगा। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। अब दोबारा से घोस्ट ने पूरी कोशिश करी कि भाई वो उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करी, पूरी कोशिश करी, पर सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। वेन मतलब वेस्ट होना। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। उन्होंने क्या करा, अब घोस्ट ने वो स्टोन जो था वो वापस ले जाके विजय सिंह को दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब घोस्ट जो था, इतना सब कुछ होने के बाद घोस्ट को ही अपने पावर्स पे शक होने लग गया कि मैं सच में कोई घोस्ट हूँ भी या नहीं, मेरे पास कोई पावर है भी या नहीं। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी अपोनेंट। अब जो विजय सिंह थे वो कह रहे कि मैं तब देख पा रहा हूँ, मुझे तुम बिल्कुल ढंग के अपोनेंट लग नहीं रहे हो, तुम लग नहीं रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरीके से compete करना चाहिए। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। वो कह रहे कि भाई ऐसे वीकलिंग, ऐसे कमज़ोर इंसान के साथ रेसलिंग करके क्या फ़ायदा जिसको मैं आराम से धूल चटा सकता हूँ। आई कैन फ्लोर इन अ मिनट का मतलब है आराम से धूल चटा सकता हूँ, ठीक है। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। और इतना बोल के जो विजय सिंह थे उन्होंने क्या करा, बहुत आराम से क्या करा, जो उनके पास सॉल्ट था उसको उन्होंने क्रम्बल किया, और चालाकी से बिल्कुल जो स्टोन था उसको उन्होंने नीचे गिरा दिया, क्योंकि अब अंधेरा इतना हो रहा था तो घोस्ट को दिखाई भी नहीं दे रहा था। ही हेल्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन। अब क्या हुआ कि जो विजय सिंह थे उन्होंने क्या करा, अपना हाथ ऐसे आगे ले जाते हुए घोस्ट के सामने रखा और कहा कि लो इसे टेस्ट करो, देखो ये है पाउडर्ड स्टोन, ठीक है। मैंने स्टोन को जो था उसको क्रम्बल करके मैंने देखो स्टोन इसमें से पाउडर जो है आपके लिए निकाला है। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told. अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, घोस्ट तो था बिल्कुल शॉक्ड हो रखा था कि कितना पावर है इस पहलवान में, कितने ज़्यादा ये जो रेसलर है कितने पावरफुल है, ठीक है। तो घोस्ट जो था बिल्कुल वैसे ही करने लग गया जैसे विजय सिंह उनको बोल रहे थे। अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड ईजली वैनक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। अब क्या हुआ कि फिर एकदम घोस्ट को लगा कि भाई ये बंदा तो जो है मुझे क्या कर सकता है, अंधेरे में आराम से किसी भी रेसलिंग बाउट या कोई भी रेसलिंग मैच में ये मुझे आराम से हरा सकता है। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वेज। अब कह रहे हैं कि क्यों ना मैं इसको किसी और तरीके से फंसाने की कोशिश करूँ। अज्यूमिंग अ सर्विल मैनर द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। अब क्या हुआ, उसने थोड़ा अलग तरीके से ना फंसाने की कोशिश करने लगा। तो उसमें क्या बोला कि भाई उसने बोला कि विजय सिंह, आप जैसा दोस्त जो है, आप जैसा इंसान जो है वो मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप जैसे इंसान से मिला।
आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कि मैं मानने को तैयार हूँ कि मैं हार गया हूँ। बट वेयर विल यू गो टुनाइट, वो कह रहा है कि पर आज तुम कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, आज मेरे घर पे रुक जाओ और कल सुबह जो है वो तुम चले जाना, ठीक है। Now thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. वो कह रहा है कि अब जो विजय सिंह थे वो भी क्या हो गए, काफ़ी खुश होते हुए बोलने लगे कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी मतलब तुम्हारी खातिरदारी को मैं नहीं मना करता, एक काम करेंगे, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ, पर कल तुम एक काम करना, मेरे साथ चलना, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्रिजनर या मेरी कैदी की तरह चलना। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, वो कह रहे कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, तो मैं वहाँ के मेरे जो गांव के लोग हैं मैं उनको दिखाऊंगा कि देखो ये वो घोस्ट है, मैं बिल्कुल एकदम ट्रॉफी की तरह अपने साथ तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। द घोस्ट bowed in agreement but silently vowed to kill Vijay Singh in the night. He led him to his house in the cave. अब क्या था, जो घोस्ट थे उसने बो यानी कि बिल्कुल हाँ करते हुए अपना सर जो है उसने झुका दिया, ठीक है, पर उसने साइलेंटली क्या सोचा, मतलब अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि मैं तो आज विजय सिंह को रात को मार ही दूंगा। तो उसने क्या करा, उनको लेके गया अपने केव में, अपने घर में लेके गया घोस्ट। विजय सिंह kept awake at night. He cleverly dubbed the ghost in his own cave. अब विजय सिंह जो थे रात भर वो जगे रहे, ठीक है, उसने क्या करा, घोस्ट को उसी के जाल में फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करी। द घोस्ट बिलीव दैट विजय सिंह वॉज अनबीटेबल, और घोस्ट को भी पता था कि जो विजय सिंह है वो बहुत ही अनबीटेबल है, यानी कि कोई उसको हरा नहीं सकता। ही रैन अवे लिविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ, और जो घोस्ट थे वो क्या हो गए, वो वहाँ से भाग गए, ठीक है, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी सब उन्होंने छोड़ दिया, और विजय सिंह क्या कर रहे थे, उस प्रॉपर्टी को लेके वो पूरी लाइफ बिल्कुल एक वेल्दी इंसान की तरह रहने लगे। The ghost fed him dry fruits and lot of milk, and later led him to luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. अब क्या हुआ, जब घोस्ट जो था अपने घर लेके गया विजय सिंह को, तो उसने क्या करा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट हो गए, बहुत सारा दूध हो गया, उसने वो सारी मिल्क और ड्राई फ्रूट जो थे विजय सिंह को दिए खाने के लिए, ठीक है। बाद में एक बहुत ही अच्छा सा लग्जरियस बेड जो था बिल्कुल रेडी कर दिया विजय सिंह के लिए, ताकि वो उस पर सो सके, ठीक है। कंप्लीट पिलो विलो तकिया वकिया सब लगा के उसने पूरा बेड जो था बिल्कुल तैयार करके विजय सिंह को दिया सोने के लिए। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, पर जो विजय सिंह थे वो पूरी रात सो ही नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए, क्योंकि क्या हो रहा था, जो घोस्ट था वो क्या कर रहे थे, स्नोर यानी कि खराटे ले रहे थे, ठीक है, उनके खराटों की वजह से विजय सिंह जो थे वो पूरी रात सो ही नहीं पाए। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, अब क्या हुआ, आधी रात में जो विजय सिंह थे वो अपने बिस्तर से उठ के चले गए। ही प्लेस द बॉल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, उन्होंने क्या करा, जो बॉल्स्टर था उसको बिल्कुल सेंटर में रख दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान सो रहा है। थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, और उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, कवरलेट यानी कि चादर बिछा दी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान वहाँ पे सो रहा है। हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, और ये करने के बाद उन्होंने क्या करा, एक कोने में जाके छुप गए और वो वहाँ से देखने लगे। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. अब क्या हुआ कि जो घोस्ट है वो बिल्कुल उनके बेड की तरफ जा रहा था, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो भी जागा, और उसके बाद वो क्या करा, जा रहा था उनके बेड के पास जा रहा था, उसके पास क्या था, एक छोटा सा मोटा डंडा था। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड, उसने क्या करा, जोर से डंडा ऐसे मारा जैसे उसने सोचा कि वो जो बॉल्स्टर है वो बिल्कुल विजय सिंह का क्या है, उनका सर है। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, इनके सर पे मारूंगा, तो उसने जोर से डंडा मारा, ऐसा लगा जैसे उनका सर है, उन्होंने उसके सर पे मारा। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। अब क्या हुआ कि उसने जब डंडा मारा तो बिल्कुल कोई आवाज़ ही नहीं आई, तो उसको लगा कि शायद मैंने अपने एनिमी जो थे, मतलब मेरे विजय सिंह जो थे, मैंने उनको मार दिया। However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. अब क्या हुआ कि अपने आप को बिल्कुल एक और बार श्योर होने के लिए विथ श्योरिटी उसने क्या करा कि दोबारा से उस बॉल्स्टर में कम से कम 6 टाइम्स, 6 बार उसने बहुत जोर जोर से वो जो मोटा डंडा था बार बार मार रहा था। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. अब क्या हुआ, जब अपने काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया कि मान गया कि हाँ भाई मैंने विजय सिंह को मार दिया, सब खत्म, तो क्या करा, वो वापस आया अपने काउच में, ठीक है, अपना सर उसने कवर किया, फिर आराम से वो फिर से दोबारा सो गया। मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड। अब क्या हुआ कि इस टाइम पे जो विजय सिंह थे वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके आराम से चुपचाप अपने बेड पे जाके बैठ गए।
After a pause, he groaned, as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या एकदम से अपने बिस्तर पे वो एकदम उठे, उन्होंने अपना जो कवरलेट था यानी कि अपनी जो चादर थी वो फेंक दी, एकदम उठ के बैठ गए. डिस्टर्ब बाय द नॉइज द घोस्ट पीप फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स. अब क्या हुआ, इतनी जब नॉइज हो रही थी तो जो घोस्ट था उसने क्या करा, उसका जो बेड क्लोथ था यानी कि उसकी जो चादर थी वो उससे थोड़ा सा झांकने लगा. टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यॉर्निंग. उसने क्या देखा कि एक जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो क्या कर रहा है, अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, यॉन कर रहा है, बिल्कुल उसके सर के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही थी. फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक. और कुछ टाइम के बाद तो जो घोस्ट था थोड़े टाइम के लिए तो बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गया कि भाई ये क्या हो गया, अभी तो मैं मार के सोया था इसको, ये कैसे उठ गया. फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव. वो कह रहा है कि भाई घोस्ट देखो आपके केव में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे कीड़े हैं. सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस. उन्होंने कंप्लेन करते हुए बोला कि देखो भाई आपके केव में बहुत सारे कीड़े हैं. हेयर आई वॉज इन्जॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स. वो कह रहा है कि मेरे को इतनी अच्छी नींद आ रही थी यहाँ पे, इतनी अच्छी नींद जो सालों साल मेरे को इतनी अच्छी नींद नहीं आई, वैसी नींद मुझे यहाँ पर आ रही थी. एंड देयर कम दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी. और उसी टाइम ये जो इंसेक्ट था ये मुझे परेशान करने के लिए आ गया. आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स. अब वो कह रहे कि मैंने बिल्कुल उसके पंख की जो फड़फड़ाने की आवाज़ थी ना वो 7 टाइम्स हो रखी थी, मैंने 7 टाइम्स उसके विंग्स जो है वो फड़फड़ा रहे थे, मैंने सुना था. ठीक है, वो क्या था, वो ये था कि जो घोस्ट गए थे ना मारने के लिए, जो वो मोटे डंडे से मारने के लिए गए थे, तो ये बिल्कुल उसी की बात कर रहे थे. पर उन्होंने घोस्ट का नाम ना लेते हुए इंसेक्ट का नाम लिया विजय सिंह ने. The ghost I distinctly counted 7 flappings of its wings. Of course it has not bitten me, but it's most annoying. वो कह रहे कि हाँ पक्का उसने मुझे काटा तो नहीं, बट ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उससे. तो घोस्ट पैनिक्ड. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. वो क्या, अब जो घोस्ट था वो एकदम पैनिक हो गए, परेशान हो गए कि भाई अगर किसी को मैंने इतने 7 बार मारा होता, इतनी डंडे से इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा होता, तो फिर कोई भी इंसान जो था उसका पल्प निकल जाता. ठीक है, देर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मेडेबल रेसलर लाइक दिस. वो कह रहा है कि भाई ऐसे जो रेसलर है, इतने स्ट्रॉन्ग इतने पावरफुल रेसलर, उनके सामने तो कोई सेफ्टी है ही नहीं. ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ. अब उसने ये सब सोचा और वो वहाँ से भाग गया. ठीक है, केव छोड़कर वो वहाँ से भाग गया. जितना भी उसका सामान था, जितना भी उसकी प्रॉपर्टी थी, जितना भी उसके पास पैसा था जो कि इल गॉटन वेल्थ था यानी कि गलत तरीके से उसने कमाया था, वो सारी चीज़ें उसने वहीं पे छोड़ दी केव पे और वो वहाँ से भाग गया. It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. और क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा विलेज से बहुत सारे कैमल्स की ज़रूरत पड़ गई थी. जितना भी सामान उस केव में था उसको लेकर ले जा गांव तक पहुंचाने में काफ़ी सारे कैमल्स की ज़रूरत पड़ गई थी. ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स. उसमें से कितनी सारी चीज़ें तो उन्होंने बिल्कुल उनको वापस कर दी जिसकी वो चीज़ें थी. ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड विमेन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट. अब वो जो विजय सिंह थे वो स्पेशली गए उस ओल्ड विमेन के पास, उन्होंने जाके उस विमेन को थैंक यू बोला, उनके गिफ्ट के लिए उन्होंने थैंक यू बोला. एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज. और उन्होंने क्या करा कि जो ओल्ड विमेन थी उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसका हाथ उन्होंने मांगा शादी के लिए. ठीक है, thenceforth, Vijay Singh was more careful about boosting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. अब क्या हुआ कि विजय सिंह जो थे उन्होंने भी अपना जो बूस्टिंग करना था यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें वो करते थे उसको भी वो अब जो थी चीज़ें उन्होंने कंट्रोल करनी स्टार्ट कर दी थी. वो सोच रहे थे कि अब मैं सोच समझ के बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. ठीक है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जो भी ट्रैवलर उसके बाद हॉन्टेड डेजर्ट गया तो उसको दोबारा कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से लोग जो थे वहाँ से ट्रैवल करके वापस आ रहे थे. So with this the chapter is end. I hope students you have understood the chapter. Thank you.